next director, I really want to work with Imtiaz Ali sir. तू बहुत अच्छी एक्टिंग करती है and I'm like तभी तो मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे लगता है I remember मैं अगर बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो रहा है there would not be a single audition that I would let go of. While the murder scene, there was a body double. It wasn't Sonakshi ma'am. I murdered a body double, but कि अगर ऑडिशन के बगैर मुझे कोई बुला रहा है, the part is not going to be that great. And even if I get that part. हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। हीरा मंडी इन दिनों जितनी बज़ में है उससे ज़्यादा तारीफ मलिका जान की हो रही है। और आपको बता दें, यंग मलिका जान जिनके परफॉर्मेंस देखने के बाद सबकी रोंगटे खड़े हो गए हैं, वो कोई और नहीं है, वो आभा है जो हमारे साथ हैं। सो आभा, फर्स्टली तो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ एंड हाउ आर यू? हेलो अंबिका, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। आपकी जो परफॉर्मेंस देखने के बाद ना अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जो आपने किया है, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए आप आई, लेकिन जो आपने कमाल किया है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। क्या कहना चाहेंगी, उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में जब आपने सोनाक्षी के गले को जब पकड़ा था? कितना अंदर आपके डर था कि कहीं ज़्यादा टाइट ना हो जाए, कुछ उनको हर्ट ना हो जाए? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू की तरह। आई थिंक संजय सर वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर दैट आई ever dreamt of working with, and to have my first show with him, it's really out of this world. And on set also it was initially very intimidating क्योंकि आप इतने बड़े set पे और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, but I feel that there was this creative connect between us कि वो जो बोलते थे मुझे समझ आ जाता था। Like after a while I felt like on his set everything is a choreography, like आप कब चीज़ उठा रहे हो, कब रख रहे हो, क्या कर रहे हो, so you have to be very present. And because I've learned dancing, I think it came very naturally to me that choreography became very easy. And Sonakshi ma'am के साथ भी the experience was amazing. I think she's a very nice person. She has this ability that she will click into a character and click out of it, whereas me, especially during when I was shooting the murder scene, I was in the zone and she's talking to me and I'm like ma'am abhi main zone mein hu, कहते okay and she just gave me my space and allowed me to get into the character and all that. While the murder scene, there was a body double. It wasn't Sonakshi ma'am. I murdered a body double, but she was also such a support. Like after every take, I was asking her, "Are you okay? Is everything okay?" And she was so kind, and she's like, "No, you be comfortable. You do what you want to do." So it was a great experience. How this project came to you? कहाँ थे आप? And when you got the call from संजय लीला भंसाली's team, कैसा वो आपका, because as you said कि आपको काम करना था उनके साथ, and जब वो call आया तो reaction क्या था आपका? So I auditioned for this in the first lockdown. After a year, I got a call back and they're like, "We want to test you for young Malika Jan's character." When I read the script, I was like, this is a great scene. Like I had to audition for the murder scene and I was like, this is it. Like it's going to have its own space in the whole web series. So I really wanted to audition for it and I imagined how the character is going to be, what to say, what to do. And when I filmed the audition, it was the first audition that I filmed. And by the end of it, I knew that this is it. This is what I want to send ahead. I think sometimes God gives you certain things and those things are meant for you and that's how they happen. So after auditioning, after a year, I got a call back and they said that aap is character ke liye finalized ho. I was out of this world. I remember getting goosebumps because Sanjay sir ke set pe, even if I'm there for a little while, it was enough for me. Like I just wanted to be there. बाकी सोनाक्षी के साथ कैसा आपका बॉन्ड बन गया एंड कितना दिन आप लोगों ने साथ में शूट किया? कैसा एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्टार्टिंग में था एंड अब कितना अच्छा कनेक्शन हुआ है? एंड कितना टाइम आप लोगों ने शूट किया साथ में? So I was not on set for a very long time. I shot like I think 2 scenes with Sonakshi and set पे बहुत ही अच्छा रैपो रहता था. Like we would always greet each other, talk to each other and very nice, very cordial like co-actors. But I feel like had I had more time with her, it would, like, you know, the relationship would have flourished even more. But like the relationship that I shared with her was very beautiful and I'm quite grateful that I got to work with her. सो
इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारे अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए एंड कोई ना कोई गॉडफादर होना चाहिए इस इंडस्ट्री में, ऐसा माना जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कोई काम पाने में इस इंडस्ट्री में, बिकॉज यू हैव वर्क इन मैनी एड्स, बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं यहाँ पे एंड आगे चल के बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको क्या लगता है यहाँ पे काम पाना कितना ईजी या डिफ़िकल्ट है? आई पर्सनली हैव अ फेथ दैट दुनिया में काम बहुत है और सबके लिए बहुत काम है। मतलब एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आपके जो बिलीव सिस्टम्स होते हैं वो आपकी रियलिटी को डायरेक्ट करते हैं। तो एवर सिंस बिगनिंग आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि सबके लिए काम बहुत है। एंड लकीली God has given me a lot of work. Like ever since I started auditioning, I was getting work, I was getting ads, something or the other would come up every other month. Like to the point that I was able to sustain myself in Bombay, which is so big for me, it's so big for my family. And so yeah, I feel like if you just keep working hard and आप पूरे दिल से हर ऑडिशन देते रहो। आई रिमेंबर मैं अगर बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो रहा है, देयर वुड नॉट बी अ सिंगल ऑडिशन दैट आई वुड लेट गो ऑफ, क्योंकि मुझे देना था ऑडिशन एंड आई रियली वांटेड टू पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो आई थिंक इट इवेंचुअली ट्रांसलेट्स, लाइक कुछ आपकी किस्मत में होता है, कुछ आपके हार्डवर्क में होता है, और कभी कभी दोनों मिलके आपको काम मिल जाता है। सो दैट्स हाउ आई फील अबाउट द वर्क। बट अब तक आपको, क्योंकि अगर आप एक एक्टर है ना, तो रिजेक्शन, मतलब एक्टर ही क्या, हर फील्ड में रिजेक्शंस होते ही हैं, बट जो एक्टर की लाइफ में ना ये रिजेक्शन का दौर बहुत ज़्यादा चलता है। सो आभा ने कितना अब तक ये चीज़ें फेस की है? मतलब प्रोजेक्ट हाथ में आने के बाद भी पता चलता है कि आप रिप्लेस हो गए हो, कई बार ऐसा होता है कि आपके मुंह पर बोल दिया जाता है कि हाँ आप इस कैरेक्टर के लिए नहीं फिट हो, जिसकी वजह से हम एक अलग ही ट्रॉमा में चले जाते हैं, मतलब ओवर थिंक करने लगते हैं कि यार ऐसा क्या कमी हो गया है कि हमें नहीं मिल रहा है। तो आभा के साथ कितना ये सिचुएशन हुआ है? बहुत, लाइक टू बी ऑनेस्ट बहुत बार ऐसा हुआ है कि बट जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मैंने तभी समझ लिया था दैट रिजेक्शन इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री। लाइक अगर आप यहाँ पे आए हो, देयर आर सो मेनी पीपल, क्रिएटिवली आपको सब नहीं अग्री करेंगे आपको और आपके कैरेक्टर को, तो यू हैव टू नो हाउ टू जस्ट कीप दैट असाइड एंड नॉट टेक दैट पर्सनली। I'm a very creative person. Like I love art and I always express myself through creativity. So whenever I got rejection, I just felt like ki maybe my profile doesn't sit right with this person, it will sit right with somebody else. And I was always able to be hopeful. I think God gave me the strength to be hopeful at that time. So every time I would get rejection, I would be like, if not this, something better. If not this, something better. So I have that faith that ki दिल से अगर आप कोई चीज़ को चाहते हो तो आपको वो मिल जाती है। तो दैट्स हाउ आई फंक्शन एंड आई थिंक दैट हेल्प्स मी डील विद ऑल द रिजेक्शंस, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड कि वेब सीरीज़ मिलते मिलते नहीं मिली, ऑडिशन सेलेक्ट होते होते आप सेट पे जाने के लिए रेडी हो बट यू नेवर गेट द कॉल। सो ऑल दैट हैज़ हैपेंड एंड नाउ आई जस्ट think like it's part of the business. I mean, it's supposed to happen. If I take that personally and stop my journey, that doesn't help me. So क्या इस लिस्ट में कोई बड़ा वेब शो शामिल है, मतलब जो रिलीज होने के बाद काफ़ी हिट हुआ हो, जो आप बताना चाहें? मतलब मैं नाम कोई चीज़ का नहीं लेना चाहूँगी, बिकॉज जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा, जो मेरे लिए बना है वो मेरे लिए मिल जाएगा। बट या देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो एक्टर्स जब इस फील्ड में आते हैं और बैकग्राउंड तगड़ा नहीं होता है, मतलब कि कोई हमारे गॉडफादर जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, तो कई बार ना कास्टिंग काउच वगैरह का भी शिकार होना पड़ता है। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ेगा, बट आपने उस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया बिकॉज ऑप्शन मिलता है अब तो लोगों को? सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में nobody has approached me like that. Nobody has said कि you would have to do this if you want work or ये वो so. And because I've also maintained my personal approach in a way that I've just given auditions and then I've waited for callbacks. Whenever somebody has called me and said कि meeting कर लो, audition नहीं है, I just don't believe in it. मुझे ऐसे लगता है कि अगर audition के बगैर मुझे कोई बुला रहा है, the part is not going to be that great. And even if I get that part, I will not be as confident about myself. So I always believe कि audition मिल जाए, audition देख लो, then call me for the part. I also feel like कि what has happened for the good. So I think it's because of that approach that I've never come across those people who would be like कि you'll have to do this or that in order to get the part. बट आपको ऐसा कॉल आया है कि मतलब बिना ऑडिशन नहीं करना है और मीटिंग के लिए हम Yeah, those kinds of calls I've gotten, like, would you come and meet this, meet him, ye wo so. But I've never gone, and I've always felt like कि when audition comes and person sees my audition, like with Sanjay sir also, I got the call for the audition, I auditioned and then they called me and
everything worked out. ऑल्सो इस इंडस्ट्री में आपके कोई फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड्स वगैरह है जो आपको आगे चल के हेल्प कर सके, आपको काम में लाइक काम दिलाने में, नए प्रोजेक्ट्स में आपको मतलब कैरेक्टर मिलने में, है कोई ऐसा? आई हैव रेड समवेयर कि आपकी सिस्टर है, तो मैं चाहती हूँ आप बताएं आपकी सिस्टर के बारे में। सो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपको कोई काम दिला नहीं सकता, आपको आपका मेरिट ही काम देगा, और अगर आपको कोई दिला भी देता है तो इवेंचुअली योर परफॉर्मेंस विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. माई सिस्टर इज़ इन द इंडस्ट्री एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट हम दोनों का जर्नी बहुत अलग है. लाइक शी हैज़ हर जर्नी, हर अप्स एंड डाउन्स, आई हैव माई अप्स एंड डाउन्स, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ विद माई अप्स एंड डाउन्स. सो दैट्स माई जर्नी. आपने बताया नहीं कि आपकी सिस्टर कौन है वो, बिकॉज जब आपका ये इंटरव्यू देखेंगे आपके फैंस तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर है कौन आपकी सिस्टर। मेरी सिस्टर हीरा मंडी में शमा का कैरेक्टर प्ले कर रही है एंड वो आपकी लापता लेडी है, तो आप लापता लेडीज़ भी ज़रूर देखिएगा. शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब. सो कितना इजी हो जाता है जब दो बहनें सेम प्रोजेक्ट के लिए काम करती हो, मतलब डिस्कशंस होते हैं ऐसे कि हाँ यार मेरा तो ऐसा काम है, मैंने इतने टेक में कर लिया, ऐसा कुछ डिस्कशंस होते हैं आपके? आई मीन हमारा रिलेशनशिप किसी भी बहन की रिलेशनशिप की तरह है. लाइक जैसे आपकी अपनी बहनों से बातें होंगी, हमारा भी इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल. तो सब चीज़ें डिस्कस होती हैं, हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम है. ऑल्सो अब आभा आने वाले दिनों में आपको किन के साथ काम करना है? संजय सर के साथ तो आपने टचवुड काम कर ही लिया है, जिनके साथ आपको करना था, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ लोग मतलब एक एक्टर है ना तो वो काम उनके साथ करना ही चाहता है. सो आपकी उस लिस्ट में कौन है वो डायरेक्टर्स हैं, किन के साथ आपको स्क्रीन स्पेस शेयर करना है? ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होंगे. सो सबसे पहले तो इम्तियाज़ अली सर. लाइक द वे ही कैप्चर्स रोमांस. आई थिंक मैंने लैला मजनू देखी थी एंड I was just smitten. I was like, next director, I really want to work with Imtiaz Ali sir and Anurag Kashyap sir also. Like, I think I really like his work also, and I think I can, that kind of character, something that raw, the way he shoots, will be very interesting to play. Actors wise, I feel like whoever the director feels it right next to me and is best, looks best with me, they will cast themselves. So I trust the director on that process. But yeah, these two directors I would definitely like to work with. ओके, वी टॉक अबाउट को एक्टर कौन चाहिए होगा, लाइक लीड में एक्टर कौन चाहिए आपको साथ में? इस बारे में मैंने सोचा नहीं है. जैसे अभी मैंने बोला कि जो स्टोरी डिमांड करती है, जो डायरेक्टर को सही लगता है, मेरे लिए एक को एक्टर है, फिर चाहे वो कोई भी हो, आई विल गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस एंड आई वुड लाइक टू वर्क विद दैम. बट स्टिल एक अंदर होता है ना, जैसे कि अगर आपको भूख लगी तो आपको एक खाना खाने का जो इच्छा होता है ना, कभी आपको बिरयानी खाने का मन करेगा, कभी आपको दाल राइस खाने का मन करेगा, तो वैसे एक होगा ना कि हाँ मुझे ये एक्टर के साथ एटलीस्ट एक बार तो स्क्रीन शेयर करना ही है. ये तो मुझे अमिताभ सर के साथ करना था वैसे, एंड लकीली आई हैव शॉट एन एड फॉर KBC विद हिम. सो उनके लिए मुझे हमेशा से ऐसे रहता था कि यार अमिताभ सर के साथ एक बार तो काम करना है. हैविंग सेड दैट, अविनाश तिवारी, ही वॉज अमेजिंग इन लैला मजनू, एंड उनका अभी का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मे बी हिम, लाइक आई रियली लाइक हिज वर्क. ऑल्सो इन दिनों अगर आप देखेंगे ऑडियंस जो है वो थिएटर्स में कम जाती हैं एंड OTT प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती है. जैसे यंग जनरेशन में हम लोग भी काउंट होते हैं, तो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब ऐसे अचानक क्या हो रहा है ऑडियंस को कि लोग थिएटर में जाना कम पसंद करें और जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी दिखाई जा रही है वो पसंद नहीं आ रही है? तो बीइंग अ एक्टर और एक अगर उस जोन से निकल के अगर आप बाहर के मतलब एक ऑडियंस होकर क्या बताना चाहेंगे, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि ऑडियंस जो है वो थिएटर नहीं जाना चाहती? एवर सिंस OTT केम, आई थिंक सबको बहुत अवेयरनेस हो गई, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू वर एक्सपोज टू इंटरनेशनल कॉन्टेंट एंड हर तरीके का कॉन्टेंट. तो आई थिंक नाउ द स्टैंडर्ड्स हैव रिजन अप. लाइक अगर उनको थिएटर जाना है, दे वांट टू पे मनी टू वॉच अ वेब शो और लाइक अ मूवी, दे वांट द रिटर्न आउट ऑफ इट. दे आर वेरी पिकी. अदरवाइज दे आर लाइक हम फ़ोन पे देख लेंगे ना, इफ़ इट्स नॉट, विच इज़ नेचुरल. लाइक अगर आपको एक चीपर ऑप्शन मिल रहा है तो आप स्पेंड क्यों करेंगे अनलेस एंड अनटिल द प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग. सो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक साइकी है एंड इट इज़ वेरी गुड बिकॉज नाउ एज इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स वी गेट टू मैच अप टू दैट क्राइटेरिया. लाइक द वर्क क्वालिटी इंक्रीजेज बिकॉज द ऑडियंस डिमांड मोर. सो आई थिंक इट्स वर्किंग आउट फॉर द बेस्ट ओनली. कमिंग बैक टू हीरा मंडी, जो स्क्रीन टाइम था, आपको क्या इस स्क्रीन टाइम से आपको
कुछ भी मतलब प्रॉब्लम थी कि हाँ मुझे कम स्क्रीन टाइम मिल रहा है, ऐसा कुछ भी था? So the story with that is that initially there were only 2 scenes for my character, and I was very happy in them also because I knew it's a strong character and I know the strong scenes are there. But then sir added 2 more scenes to my character. तो मेरे लिए वो और अच्छा हो गया. I was even more happy कि wow I get to work with the team 2 scenes more. तो मतलब it's I would any day anybody would have loved more screen time on Sanjay sir's set. Why not? But what I got, I'm very happy with it. ऑल्सो आपने मल्लिका जान का मतलब यंगर वर्जन आपने प्ले किया है. मनीषा मैम से बात हुई थी आपकी एंड क्या बातें हुई? So the thing is, मनीषा मैम से कुछ बात नहीं हो पाई because हमारी timelines ही different थी. I was her younger version in the past. She was the future version. So there were never a day that both of us were on set. Like even if we were, the units were different and we were very occupied with our own work. But yeah, to prepare for the character, I did see a lot of films that she has done, and I was trying to pick up her mannerisms and all that. So yeah, virtually मुलाकात हुई है, ऐसे visibly मुलाकात नहीं हुई. बाकी जो प्रीमियर वगैरह हुआ था उस पर मुलाकात हुई थी आपकी मैम से, कुछ बातें हुई? नहीं हो पाई, लाइक बातें नहीं हो पाई. प्रीमियर पे सब थे, आई ऐसे सामने से ही नॉड्स एंड ऑल एक्सचेंजेस, बट लाइक बातें नहीं हो पाई. बातें आई एम श्योर कभी ना कभी ज़रूर होगी, बिकॉज वो जो यंगर वर्जन था ना वो उसमें इतना पावर दिखा दिया गया था ना कि वो फ्यूचर देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. तो मतलब आपने आपका काम बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि एक चीज़ देखने के बाद जब कोई हम एक्टर को देखते हैं ना किसी कैरेक्टर में, जब वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसको बाद में देखने का मज़ा ही कुछ होता है. आपने वो काम बहुत अच्छे से किया है. फैमिली का क्या रिएक्शन आपके इस कैरेक्टर पे लेकर, एंड द वे यू शोन योर सेल्फ ऑन स्क्रीन वॉज फैब? पहले तो आपने इतनी तारीफ़ कर ली, थैंक यू सो मच. आई फील वेरी हैप्पी एंड लाइक द ऑडियंस इज़ हाउ दे आर कमिंग एंड टेलिंग दैट टू मी. मतलब बहुत ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है. मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी. दे वर लाइक, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे सॉ मी एक्ट. दे हैड सीन मी इन एड्स एंड बाकी सब चीज़ें, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे सॉ मी एक्टिंग एंड दे वर लाइक तू बहुत अच्छी एक्टिंग करती है. एंड आई एम लाइक तभी तो मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मतलब कि कुछ तो अच्छा कर रही हूँ मैं, कि मुझे काम मिल रहा है. सो या यस. सो अब हीरा मंडी के बाद अब आपके पास किन लोगों ने अप्रोच किया है? मतलब आप नाम नहीं भी बताएंगे, क्या पाइपलाइन में कुछ है आपके, कुछ आने वाला है, कोई नया वेब शो आने वाला है, या किसी मूवी के लिए आपने ऑलरेडी साइन कर दिया, कुछ हुआ है ऐसा? So, because of हीरा मंडी, I have started getting a lot more auditions. जो मुझे पहले मिलते थे उससे ज़्यादा भी, एंड फॉर इंटेग्रल पार्ट्स मुझे काफ़ी auditions मिल रहे हैं. कहीं कहीं शॉर्ट लिस्टिंग भी है, बट अभी फाइनल एक तो जब तक मैं सेट पे नहीं हूँ, I don't consider it real. I like once I'm on set, then it's real for me. So hopefully more work comes in and मैं आज जल्दी आपको बता पाऊँगी, और हम एक और इंटरव्यू ले रहे होंगे कि ये हुआ है वो हुआ है. So I hope that happens. बट ये रिजेक्शन से कितना मतलब लो फील होता है, बिकॉज हम अपना घर फैमिली सब छोड़कर मुंबई आते हैं सिर्फ काम के लिए, और जब एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3, जब ऐसे ये कंटिन्यू होने लगता है ना तो अंदर से इंसान लो हो जाता है. भले वो कितना भी स्ट्रांग रहे, बट एक वो पल आता है ना 1 सेकंड के लिए, तो वो थोड़ा तो एक मायूस हो जाता है. आई एम श्योर आपके साथ भी ज़रूर होता होगा, बिकॉज आप भी इंसान ही है, हम भी इंसान. जब वो मेरे साथ हो सकता है तो आई एम श्योर आपके साथ भी होता ही होगा. उस वक्त क्या करती हैं आप? लाइक फैमिली से बात करते हो, या मतलब क्या होता है आपका जब आप एकदम लो फील होते हो? बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि अकेले रोने, कुछ लोग होते हैं वो अकेले रो लेते, और कुछ लोग होते हैं वो ना अपनी बातें कर करके उस चीज़ों को निकाल देते. आबा किस टाइप की पर्सन है? एक तो मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, एंड आई थिंक दैट्स वाई माई इमोशंस ट्रांसलेट ऑन स्क्रीन ऑल्सो. एंड मेरे साथ कुछ भी होता है वो दिख जाता है कि हुआ है. सो देयर विल बी डेज आई एम वेरी मोटिवेटेड, वेरी डूइंग एवरीथिंग, एंड देयर विल बी वन डे, मे बी once a week, once a month, where I'll just sit by myself and I'll cry. I'm that person. I'll sit by myself and I'll cry, and पूरा वो सिस्टम से बाहर निकलता है, and next day I'm fresh and I'm like, let's conquer the world. सो अध्ययन के साथ आपका मतलब कैसा बॉन्ड रहा? बिकॉज वो भी एक ऐसे ही एक्टर है जो चीज़ों को लेके बहुत, मतलब जब वो सीन में है तो एकदम सीन में ही रहते हैं, तो उस वक्त उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है. तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस?
Very nice. I think he was also very nice to me, and kabhi bhi set pe he would ask me, "You're comfortable? Everything is okay." So we had a good bonding, and जितना हमारा screen time था उस हिसाब से Malika Jan and him, we had to have that, bonding, which is a little different, but it's still there. So playing that off was very interesting. I remember in this one scene, when he hands me the papers कि आप बेगुनाह हैं, तो we were talking about that, how he knows that she is a certain person, and now he has given the power to her willingly कि भाई now you're beguna, and she goes like hum beguna, and he's like, oh no, like what did I just do? But then they're still together, so it was a very interesting dynamic to play off. सो वो कुछ सीन भी दिखाए गए थे आपके अध्ययन के साथ, तो उस वक्त मतलब वो कितना कंफर्टेबल आपको करते थे, मतलब सीन से पहले एक होता है ना, बिकॉज मैंने सामने भी देखा है कुछ कुछ एक्टर्स होते हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होता है कि वो जब फीमेल एक्टर जो होती है उनके सामने वो पहले उनको कंफर्टेबल कर देते हैं, उसके बाद वो सीन के लिए स्टार्ट करते जो भी शूट होता है उनका। तो आपके साथ कितना हुआ ये सीन? आई थिंक हमारा कंफर्ट लेवल बिल्डअप था, लाइक हाँ, सो ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिकली कुछ करना पड़ता, एंड वी वर वेरी प्रोफेशनल एक्टर्स, लाइक आई वॉज वेरी प्रोफेशनल अबाउट माई वर्क, ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, सो वी न्यू वट नीड टू बी डन, एंड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल. सो व्हाट एल्स यू वांट टू डू आभा, लाइक एक्सेप्ट एक्टिंग के अलावा और क्या करना है आपको? बिकॉज अब तो एक साइड बिजनेस भी होना बहुत ज़रूरी हो गया, और ये अब एक्टर्स खुद कहने लगे, एंड आप अगर देख सकती हैं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके अलग अलग बिजनेस भी है। सो आभा अपने एक्टिंग के साथ साथ और क्या करेंगी ताकि उनका पीछे भी बैकग्राउंड जो है वो एकदम स्टेबल ही रहे? So, acting is one thing that I'm really focusing on right now. Right now, I can't have distractions in my life. Once I've become a brand and I've reached somewhere, I feel like now I can invest into other businesses. I think homestay business in Himachal, because I'm from Himachal and tourism is really blossoming there. So that is one business that I would like to invest in. So lastly, what message you want to give to your fans who is showing so much love to you and on your character और बहुत सारी चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे उनको? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव. आप जिस तरह से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, टैग्स कर रहे हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट, एंड दैट टू फॉर एन एक्टर हु इज़ जस्ट स्टार्टेड, ऑल दिस कमिंग माई वे. आई रियली अप्रिशिएट इट. इट गिव्स मी सो मच मोर मोटिवेशन टू प्ले इवन मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स सो दैट यू कुड enjoy that performance. I hope I'm able to do that in the future. Thank you so much. थैंक यू सो मच आभा एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आप ऐसे ही बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लेकर आओ ताकि हम वापस आपका इंटरव्यू लेने यहाँ आ सके. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.